اور اب بات کرتے ہیں کرسمس کی رنگا رنگ تقریبوں کی۔ تو مسیحی برادری کا جوش و جذبہ عروج پر ہے، گلیاں اور بازار سج چکے ہیں، چرچز میں تقاریب کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ کرسمس کا تہوار ہے اور اس حوالے سے تیاریاں جاری ہیں، گلیاں اور بازار سج چکے ہیں، چرچز میں تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ مسیحی برادری کا جوش و جذبہ بھی عروج پر ہے۔ گلیاں اور بازار سج چکے ہیں، چرچز میں تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے اور تقاریب میں خصوصی دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ملک و قوم کی سلامتی کے حوالے سے بھی دعائیں کی جا رہی ہیں اور کرسمس کے اس رنگا رنگ تہوار پر مسیحی برادری کا جوش و جذبہ عروج پر ہے، گلیاں اور بازار سج چکے ہیں اور تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کرسمس کا تہوار ہے اور مسیحی برادری کا جوش و جذبہ بھی اس وقت عروج پر ہے، گلیاں اور بازار سج چکے ہیں، جبکہ چرچز میں بھی تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ علی رضا اور عثمان الیاس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی رضا اس وقت کیتھیڈرل چرچ میں موجود ہیں اور عثمان الیاس بشپ چرچ میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں علی رضا کا۔ علی رضا بتائیے گا، کرسمس کا تہوار ہے، کس طرح سے منایا جا رہا ہے؟ کرسمس کی مناسبت سے دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے اور مسیحی برادری کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اس دعائیہ تقریبات میں شریک ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر ایک فیملی بھی موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ کرسمس کا تہوار ہے، فیملی کے ساتھ آپ یہاں پر آئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میری کرسمس ایوری ون، مسیح میں سب کو میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ We want to wish the whole world a very happy Christmas and a very happy New Year. Thank you so much. آج بالکل ان کی جانب سے میری کرسمس اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لوگ یہاں پر آئے ہیں، دعائیہ تقریبات میں حصہ لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کورونا SOPs کے حوالے سے بھی کافی خیال رکھا گیا ہے۔ لوگ ماسک پہن کر اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے لیے بھی یہاں پر خصوصی دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے اور لوگ یہاں پر کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور امن کا تہوار ہے، لوگ یہاں پر کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے علی رضا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ عثمان الیاس کا رخ کرتے ہیں جو کہ بشپ چرچ میں موجود ہیں۔ عثمان بتائیے گا، یہاں پر آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ جو مسیحی برادری ہے اپنا کرسمس کا تہوار مذہبی آزادی کے ساتھ پرجوش طریقے سے منا رہی ہے اور اس وقت میں یوحنا آباد کو سائٹ چرچ میں موجود ہوں جہاں پہ دعائیہ تقریب کا جو ہے رسمی طور پہ 10 بجے کے قریب انعقاد کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے 10 بجے سے جو عبادات کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور یہاں پہ مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ ہمارے ساتھ فادر موجود ہیں یہاں پہ جنہوں نے ابھی دعا بھی کروائی ہے، ان سے جانتے ہیں۔ جی فادر بتائیے گا، آج کے دن سے کیا پیغام دیں گے اور کس طرح سے یہ تہوار منایا جائے گا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں 42 کا بہت شکرگزار ہوں جو لوگ آئے ہیں اس سردی میں تاکہ اس عبادت کو کور کریں، تو میں ان کا بہت شکرگزار ہوں۔ میں سارے چینل کا شکرگزار ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں آج مسیحی دنیا خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، تو میں تمام اہل وطن کو اور دنیا کے تمام لوگوں کو آج کے اس دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں خاص طور پر یہ جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح چونکہ امن کے لیے آئے ہیں، دنیا کی نجات کے لیے آئے ہیں، تو میں ریکویسٹ کروں گا تمام دنیا کے لوگوں سے کہ آج کا دن ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں امن پیدا کریں، لڑائی جھگڑے، لڑائیاں، فتنے، دوسروں کو ڈی گریڈ کرنے کا تصور ختم کر دیں۔ اور میں حکومت والوں جو دنیا کی حکومتیں ہیں ان کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ غلط پالیٹکس کرنے کی بجائے آپس میں۔ یہ بھی بتائیے گا کرسمس کے حوالے سے کیا ہم جو ہے رسمات کیے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ہم کہیں گے کہ جو ہے رسمی عبادات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور فادر نے ہمیں یہ بھی کہا کہ کرسمس کی مناسبت سے تمام لوگوں کو جو ہے
एक अमन का पैगाम दिया जाता है और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है, और इस हवाले से जो इबादत का सिलसिला है वो भी जारी है। मसीही बरादरी पुरजोश तरीके से है और वो बड़ी तादाद में जो है रस्मी तौर पर जो इबादत का सिलसिला उसमें शिरकत की, और साथ ही साथ अभी यहाँ पे केक कटिंग तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। कोर पे यहाँ पे गीत भी गाए गए और साथ ही साथ जो अपनी मजहबी अकीदत के साथ जो रस्मी तौर पर इबादत का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। और इसके बाद क्राइस्ट चर्च पर मौजूद थे और अली रजा कैथीड्रल चर्च पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लाहौर पुलिस शदीद सर्दी धुंध के बावजूद क्रिसमस की खुशियां महफूज बनाने के लिए सरगर्म है। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान की हिदायत पर तमाम डिवीजनल एसपीज का गिरजाघरों का दौरा, पुलिस अफसरान का सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा, पादरियों चर्चेज इंतजामिया से मुलाकातें, 5000 पुलिस अफसरान और जवान तैनात किए गए हैं। आबिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा कि किस तरह से सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, क्रिसमस के मौका पर लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। CCP लाहौर उमर शेख के मुताबिक बताया जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 620 से ज़ायद मसीही भाइयों के गिरजाघरों और इबादत गाहें हैं जहाँ पर लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। इस वक्त गुलबर्ग के इलाके एम आलम रोड पर वाक़या सेंट मैरी चर्च के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा CCP लाहौर का यह कहना है कि डिवीजनल SP जो हैं वो अपने अपने डिवीज़न में सिक्योरिटी का जायज़ा ले रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर गिरजाघर की, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के जो है इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए, जहाँ पर 3 लेयर्स में जो आने वाले शुरा हैं उनकी तलाशी ली जा रही है और 3 मकामात पर तलाशी के बाद उनको गिरजाघर में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। पुलिस के हवाले से कहना है कि क्रिसमस के मौका पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 60 से ज़ायद ऐसे मकामात हैं जहाँ पर नाकाबंदी भी की गई और वहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी के लिए इजाफी स्टेडियम में केक काटने और राशन तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक, AC मॉडल टाउन ज़शान रांचा, खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद समेत दीगर ने शिरकत की। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से इजाफी स्टेडियम में क्रिसमस डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में DC लाहौर मुदस्सिर रियाज, CEO LWMC इमरान अली सुल्तान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग अमीर हुसैन कुरैशी, AC मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा, अमन कमेटी के मेंबर मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद, कैथीड्रल चर्च के पादरी शाहिद मेराज, सरदार बिशन सिंह, तोकीर हुसैन बाबा, मोहम्मद अली नक्शबंदी, अब्दुल्ला साकिब और मसीही बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में मसीही बरादरी की खुशियों को दुबाला करने के लिए केक काटा गया और तकरीबन 300 मसीही मुलाजिमीन में राशन और तोहफे तकसीम किए गए। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज का कहना है कि पाकिस्तानी झंडे में सफेद रंग इस चीज की अलामत है कि इस परचम के साए तले दीगर मज़ाहिब भी इतने ही पाकिस्तानी हैं जितने के मुसलमान। मकसद तो यही है कि जो पाकिस्तान में सफ़ेद रंग का झंडा है और वो सब्ज़ रंग का झंडा, ये इकट्ठे हैं, ये एक कलर एक ही झंडे के अंदर है, तो हम बेसिकली पाकिस्तानी हैं, तो तमाम खुशी और गमी में इकट्ठे हैं। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का कहना था कि इस्लाम हमें अक़लियतों के इज्जत और एहतराम और इनके दुख सुख में शरीक होने का दर्स देता है। और मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान में यूनिटी है, इत्तेहाद है, हम आहंगी है और उसका मुजाहरा आज आप लाहौर से भी देख रहे हैं। कैथीड्रल चर्च के पादरी शाहिद मेराज ने भी अखुवत और भाईचारे का दर्स दिया। पाकिस्तान बिला इम्तियाज रंग, नस्ल, मजहब, ज़ात, अक़ीदे हम सबका पाकिस्तान है और इन त्योहारों पर जब हम इकट्ठे होते हैं तो यकीनन एक यकजहती, हम आहंगी और बहैसियत पाकिस्तानी कौम जो है वो एक बहुत मजबूत मैसेज मिलता है। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर मुसलमान, खुशी और गमी के मौके पर जब सब मिल बैठते हैं तो इस बात का सबूत मिलता है कि इस परचम के साए तले सब एक हैं। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। शहर भर में क्रिसमस की तकारीब सजाई गई और क्रिसमस के केक काटे गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने क्रिसमस की मुनासबत से केक काटा। उन्होंने मुल्क की तरक्की में मसीही कम्युनिटी के मस्बत किरदार को सराहा। कमिश्नर लाहौर ऑफिस देव समाज रोड पर क्रिसमस की तकरीब हुई। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुमन ने मसीही मुलाजमीन के हमरा केक काटा और मुलाजमीन में ईदी तकसीम की। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में मसीही मुलाजमीन के लिए क्रिसमस की तकरीब सजाई गई, जिसमें तमाम मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। रॉयल प्लाजा शादमान में क्रिसमस का केक काटा गया। चेयरमैन अमन कमेटी लाहौर चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर ने मसीही कम्युनिटी को मुबारकबाद दी। महकमा मादनियात पंजाब मसीही भाइयों की खुशियों में शरीक हुआ। सेक्रेटरी मादनियात आमिर एजाज अकबर ने क्रिसमस का केक काटा। क्रिसमस की मुनासबत से इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में तकरीब हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन PND बोर्ड ने मसीही बरादरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पंजाब पुलिस में मसीही मुलाजमीन के लिए क्रिसमस की तकरीब सजाई गई। DIG ऑपरेशंस ने मसीही एहलकारों के लिए 3 रोज की छुट्टी का ऐलान किया। पंजाब बोर्ड बराए सरमायाकारी ऑफिस में मसीही भाइयों से यकजहती के लिए क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया।
को हेड ऑफिस में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। इंतजामिया की जानिब से मसीही मुलाजमीन को तहाइफ दिए गए। ज़हूर इलाही रोड पर वाक़े हुमा सैलून में क्रिसमस की तकरीब सजाई गई। सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ व अक़लियत अमूर एजाज आलम ऑक्सटन तकरीब में शरीक हुए। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के तहत क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया। मसीही बरादरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। कुछ बात करेंगे धुंध की सूरत हाल पर। तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ में इस वक्त शदीद धुंध है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया है। लाहौर आने और जाने वाली परवाजें रीशेड्यूल कर दी गई हैं। एयरपोर्ट राय की जानिब से ये बताया गया है, जबकि हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे को बंद कर दिया गया है। लाहौर से सियालकोट जाने वाले रास्ते बंद हो चुके हैं। लाहौर से कोट मोहम्मद तक शदीद धुंध के बायस मोटरवे बंद कर दी गई है। बाबू साबू से इस्लामाबाद मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। हसन खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन खालिद, बताइएगा कि धुंध की क्या सूरत हाल है और एयरलाइंस ने भी अपना रीशेड्यूल किया है, इसके साथ साथ जो मोटरवे है उसको भी बंद कर दिया गया है। जी हाँ, लाहौर और इसके गिरदोनवा के इलाके एक बार फिर से शदीद धुंध की लपेट में हैं और धुंध की वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुए हैं। अगर बात करूं लाहौर एयरपोर्ट की, तो लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह इंतहाई कम होने पर फ़्लाइट ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है, जिसके बायस मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख और रीस्केजुअल कर दी गई हैं। अगर बात करूं दुबई जाने वाली परवाज़ 410 की, तो उसको मनसूख कर दिया गया है। इसके अलावा दुबई से अबू धाबी जाने वाली परवाज़ 430 को सुबह 10 बजे धुंध में बेहतरी आने पर रवाना किया जाएगा। इसके अलावा कतर से आने वाली परवाज़ QR 620 अब दोपहर 12:30 बजे लाहौर पहुंचेगी और यहाँ से 621 कतर जाने वाली परवाज़ जो है वो दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी। एयरपोर्ट पर इस वक्त फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है, क्योंकि रनवे के ऊपर हद निगाह जो है वो इंतहाई कम हो चुकी है। अगर साथ ही साथ में मोटरवेज़ की बात की जाए, तो मोटरवे पर भी हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे को M2 को लाहौर से कोट मोमिन और इस्लामाबाद तक आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि M3 लाहौर से समंदरी तक बंद कर दिया गया है। इसके अलावा M4 के भी मुतअद्दिद सेक्शन जो है वो हद निगाह कम होने पर आम ट्रैफिक के लिए बंद हैं। शहरियों को बारखां ये तलकीन की जा रही है कि वो घरों से निकलने से पहले मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पर कॉल करके पहले मालूमात हासिल कर लें, इसके बाद घर से निकलें और सफ़र के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और दौरान सफ़र ओवर स्पीडिंग ना करें और अपने सामने वाली गाड़ी के दरमियान एक मुनासिब फासला रखें, ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। और अगर बहुत ज़रूरी सफ़र करना है तो मोटरवे की बजाय शहरी जो है वो GT रोड के ज़रिए जो है अपना सफ़र जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा शहर के अगर अंदरूनी इलाकों की बात करें, शहर के अंदरूनी इलाके भी इस वक्त शदीद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो शहर में 24 घंटों के दौरान मजीद 18 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 373 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 132 ICU में जा पहुंचे हैं। उधर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की फैमिली के तशख़ीसी टेस्ट मनफी आ गए हैं, जबकि लाहौर की जेलों में बंद 4 कैदियों में वायरस की तस्दीक हुई है। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 18 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 1504 हो गई। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक लाहौर में 373 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। 83 अफराद की हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर की जेलों में बंद 4 कैदियों में वायरस की तस्दीक हुई है। मुलाकातियों के लिए शीशे का कमरा तैयार किया गया है, आइंदा फोन पर बात हुआ करेगी। कोरोना का शिकार वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तबीयत बेहतर होने लगी। कहते हैं कि तबीयत में मजीद बेहतरी आई है। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक आराम कर रहा हूँ। वज़ीर आला ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से फैमिली के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। अवाम से अपील है कि कोरोना से महफूज रहने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से लेस्को ने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर बंद रूट कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से लेस्को ने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर बंद रूट समेत तमाम सर्कल्स के सेंटर्स को ताहुक्म सानी बंद कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना वबा की वजह से ताहुक्म सानी तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत, 80 करोड़ की लागत से तहसील और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कोरोना मरीजों के लिए 4 से 6 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन यूनिट्स का क़याम और मजीद आलात खरीदे जाएंगे।
पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत पंजाब भर में मौजूद तहसील और डिस्ट्रिक्ट सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए मजीद सहूलियात फराहम करने का फैसला किया है। 80 करोड़ की लागत से तमाम अस्पतालों में कोरोना के सीरियस मरीजों के लिए आइसोलेशन यूनिट्स कायम किए जाएंगे। आइसोलेशन यूनिट्स 4 से 6 बेड्स पर मुश्तमिल होंगे। मंसूबे पर महकमा सेहत और PDMA अमल दरामद करवाएगा। रकम से 151 वेंटिलेटर्स, 160 बेड साइड मॉनिटर, 223 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 160 इन्फ्यूजन पंप्स, 45 एयर स्टेरिलाइजर्स खरीदे जाएंगे, जबकि 45 मोबाइल एक्सरे मशीन, 156 एम्ब्यू बैग्स, 37 सक्शन मशीनें, 36 मेडिकल रेफ्रिजरेटर, 45 व्हीलचेयर्स और 22 ECG मशीनें भी खरीदी जाएंगी। और अब कुछ बात करते हैं महंगाई की। तो महंगाई का जहर खुशियां निकलने लगा है। चीनी से भी मिठास छीन ली है। ओपन मार्केट में चीनी 5 रुपए इजाफे से 85 रुपए फी किलो हो चुकी है। दरामदी चीनी का मामूली रिलीफ भी खत्म हो चुका है। अंडों की कीमत में भी मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। मार गई महंगाई, शहरियों की दुहाई। ओपन मार्केट में चीनी 5 रुपए फी किलो महंगी हो गई। चीनी की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे होने पर शहरी तिलमिला उठे। मुंहजोर महंगाई ने अंडे भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिए। अंडे का सरकारी निर्ख 1 रुपए इजाफे से 201 रुपए दर्जन हो गया, जबकि ओपन मार्केट में अंडे 215 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। रोजमर्रा की दीगर अशिया की तरह सब्जियों के दाम भी बढ़ गए। टमाटर 5 रुपए इजाफे से 120 रुपए किलो फरोख्त हुए। लहसुन की कीमत 300 रुपए तक वसूल की गई। मटर, पालक और शलजम की कीमत में भी इजाफे का रुझान रहा। दुकानदार सरकारी निर्ख के बजाय मनमाने दाम वसूल करते रहे। और शहर में कूड़ा करकट के ढेर लगने से शहरी परेशान हैं। नून लीगी रहनुमाओं ने साफ सफाई की अबतर सूरत हाल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। शहर में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगने के बायस शहरी परेशान हैं। कूड़ा करकट के बायस ताफुन फैल रहा है, जिससे मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा है। शहरियों का कहना है कि साफ सुथरा शहर हुकूमती नाअहले की वजह से कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया जी, इसको उठाने वाला तो कोई है नहीं। कोई किसी से क्या कहें, कारपोरेशन तो वैसे ही ख़त्म की हुई है। अब जो लोग कहते हैं कि गंदगी साफ रखो, डेंगू से बचाओ, ये करो वो करो, हम डेंगू से कैसे बचेंगे? मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मियां मुश्तबा शजाउर रहमान, गजाली बट, चौधरी शहबाज अहमद, कमल लियाकत और उज़मा ज़ैन कादरी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। हर गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनको ख्याल करना चाहिए। आई थिंक बनी गाला के महल से तो ये चीज़ें उनको नज़र नहीं आएंगी। आसमान से नीचे उतरने की ज़रूरत है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब लोगों के दरमियान मौजूद होते थे। सीवरेज का हाल देख लें, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सीवरेज ब्लॉक कीजिए, कोई बंदा पूछने वाला ये है शहर लाहौर, और आज इसके दरो दीवार, आज इसके गली कूचे याद कर रहे हैं, और मियां शहबाज शरीफ किधर चला गया। उधर LWMC ने 2 साल बाद शहर में मैकेनिकल वॉशिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग बहाल करने का दावा किया है। तर्जुमान लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शहर की तमाम सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम तारीखी इमारतों, रोड्स, सिटी फर्नीचर और चौराहों को खुसूसी तौर पर धोया जाएगा। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार गुम्मन और डेप्यूटी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि सफाई की राह में हायल मुश्किलात आर्जी हैं। लाहौर को जल्द कचरे से पाक कर दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने चेयरमैन LWMC मलिक अमजद नून के साथ निस्बत रोड, मेव हस्पताल चौक, एबिक रोड समेत दीगर इलाकों का दौरा करके सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि LWMC 3 शिफ्टों में काम कर रही है, जल्द शहर को साफ कर दिया जाएगा। जब एक सिस्टम जो है वो हमारा अरेंजमेंट टर्किश कंपनी के साथ चल रहा था, वो जब वो ख़त्म हुआ और टेक ओवर किया कंपनी ने, चेयरमैन साहब आपके हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर वो तरफ इनिशियली हमें डिफ़िकल्टीज आई हैं, लेकिन उसके बाद हमने कोप कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बड़ी तेज़ी के साथ जो है ये ऑपरेशंस जारी हैं और बड़ी जल्दी इंशाल्लाह नॉर्मल से। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज ने घड़ी शाहू में सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। DC ने शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात का एतराफ़ करते हुए आइंदा दरोज में तमाम कूड़ा करकट उठाने की यकीन दहानी करवाई। 3 शिफ्टों में इस टाइम काम हो रहा है। हमारे 23 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जहां से ट्रांसफर स्टेशन से कूड़ा मेन उठाया जाता है। मशीनरी कम होने की वजह से उसमें मसाइल थे, कंपनी काम नहीं कर रही थी। लेकिन अब तमाम मशीनरी क्योंकि टेक ओवर कर ली गई है, रेंटल मशीनरी भी ले ली गई है, तो अब कूड़े की उठाने का अमल जारी है।
तमाम शिफ्टें काम कर रही हैं। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। जिले इंतजामिया के अफसरों का कहना था कि कंपनी के साथ तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स के मसाइल की वजह से शहर की सड़कों पर 35,000 टन कूड़ा पड़ा था। कूड़े को डंप करने के लिए 23 आरजी डंपिंग साइट्स बनाई गई हैं। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर तमाम अफसरान शहर की सफाई को मॉनिटर कर रहे हैं। अलबराक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियां और मशीनरी कब्जे में लेने का इकदाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अलबराक कंपनी की गाड़ियां और मशीनरी इस्तेमाल करने से रोक दिया है। पंजाब हुकूमत LWMC और IG समेत दीगर फ्रीकैन को 29 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने अलबराक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से शाज़िम मसूद एडवोकेट पेश हुए। वकील ने पंजाब हुकूमत, LWMC, IG पुलिस और CCPO समेत दीगर को फरीक बनाते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार अलबराक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और LWMC के दरमियान मुआहिदा अभी बाकी है। मुआहिदा खत्म होने से कबल ही पुलिस ने दरख्वास्त गुजार कंपनी की गाड़ियाँ और मशीनरी कब्जे में ले ली है। पुलिस के पास दरख्वास्त गुजार अलबराक कंपनी की गाड़ियाँ और मशीनरी कब्जे में लेने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। दरख्वास्त गुजार वकील ने दलाइल देते हुए इस्तदा की कि अदालत पुलिस की जानिब से अलबराक कंपनी की गाड़ियां और मशीनरी कब्जे में लेने का इकदाम कालअदम करार दे। मजीद इस्तदा की गई कि अलबराक कंपनी की गाड़ियां और मशीनरी दरख्वास्त गुजार को वापस करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अलबराक कंपनी की गाड़ियां और मशीनरी इस्तेमाल करने से रोक दिया। LWMC को जीरो वेस्ट ऑपरेशन के लिए मुश्किलात का सामना है। कंपनी ने सफाई के लिए वासा से हैवी मशीनरी मांग ली है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने वासा से 20 डंपर्स और 10 एग्जीक्यूटर्स मांगे हैं। CEO MCL इमरान अली सुल्तान की जानिब से तहरीरी तौर पे मशीनरी मांगी गई है। CEO ने MD वासा सैयद जाहिद अजीज को खत लिखा है। वासा से शहर में इमरजेंसी वेस्ट क्लियरिंग ऑपरेशन के लिए मशीनरी मांगी गई है। उधर वासा MWMC को मशीनरी देने में कंफ्यूजन का शिकार है। शहर में इस वक्त ड्रेनों की सफाई के लिए वासा की तमाम मशीनरी ऑपरेशनल है। वासा हुकाम का कहना है कि ड्रेनों की सफाई ऑपरेशन की वजह से वासा फ्लैट से मशीनरी निकालना मुश्किल है। जबकि कैंप जेल में कैदियों की अमवात बढ़ने लगी हैं। 15 दिनों में चौथा कैदी दम तोड़ गया। जेल हुकाम के मुताबिक 22 साल असदुल्ला चोरी के केस में कैद काट रहा था। असदुल्ला नशे का आदी था, जिसे जेल अस्पताल में इलाज के बाद बैरक मुंतकिल किया गया। सुबह जेल खोलने पर चेक किया तो वो मुर्दा हालत में था। जेल डॉक्टर्स ने ECG और दीगर मुआयना किया तो सांस पहले से ही बंद हो चुकी थी। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट का रेड जोन एक्ट बनाने की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस जवाद हसन ने रेड जोन की हदूद में जलसे जुलूस करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने असगर अली की दरख्वास्त पर 10 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक रेड जोन एक्ट 2020 की मंजूरी के बाद इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सूबे में अमन की सूरत को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत इकदाम उठाए। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि कानून की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका महकमा मुकदमा दर्ज करे। मीडिया के जरिए रेड जोन एक्ट से मुतल्लिक आगाही दी जाए। सड़कों पर ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए कैमरा और रियासी इदारे अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि रेड जोन में हड़तालों को रोकने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं था। आइन के तहत शहरियों की आमदरफ्त पर कोई कदगन नहीं। आइन का आर्टिकल 9 शहरियों के हुकूक के तहफ्फुज़ की जमानत देता है। आइन का आर्टिकल 18 शहरियों के कारोबार को तहफ्फुज़ देने की बात करता है। जस्टिस जवाद हसन ने तहरीरी फैसले में मजीद कहा कि ताजिरों के हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए मार रोड पर ट्रैफिक का तसलसल बरकरार रखना जरूरी है। जालसाज सरगना गिरोह पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में है। अल्लाहू इंडस्ट्रियल स्टेट के इलाके में मुख्तलिफ ब्रांड्स की जाली प्लास्टिक बोतलें तैयार करने वाले प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली प्लास्टिक की बोतलें तैयार करने वाली प्रोडक्शन यूनिट पर छापा मारकर 1500 तैयार बोतलें, भारी मकदार में गैर मेयारी खाम माल और मशीनें जब्त कर ली। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली निस्वाना का कहना है कि नॉन फूड ग्रेड मटेरियल से बोतलें तैयार करके धोखाधड़ी का धंधा करने वालों को सप्लाई की जा रही थी। नाकुस बोतलें पर असल जैसे नकली कोड भी लगाए जा रहे थे। सफाई के इंतहाई नाकुस इंतजाम और लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। जाली बोतलें सप्लाई नेटवर्क से जालसाज माफिया का सुराग लगाया जा रहा है। जालसाजी का मकरूह धंधा करने वाले यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। गवर्नर पंजाब से वजीर आजम के मुआवने खुसूसी नदीम अफजल चंद की मुलाकात हुई। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी मिनट भी पूरा करके ही जाएगी। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में चौधरी मोहम्मद सरवर और नदीम अफजल चंद ने सियासी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि PDM जमातें एक पेज पर नहीं, सबका अपना अपना पेज है। मायूस PDM को अब खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। ऑपोजिशन के A से Z तक तमाम प्लान फ्लॉप होंगे। उन्होंने कहा कि PDM के जल से कोरोना फैलाव मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं।
قائد-ए-आज़म की सालगिरह के हवाले से मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने अपने पैगाम में कहा है कि वतन अजीज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की अनथक मेहनत और जिद्दोजहद से कायम हुआ। कौम रहती दुनिया तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की एहसान मंद रहेगी। क्रिसमस की खुशियों के मौके पर मसीही बरादरी को भी मुबारकबाद पेश की। मुस्लिम लीग पंजाब के सीनियर नायब सदर चौधरी सलीम बरियार ने पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम कायद के और क्रिसमस के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया। दफ्तर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में क्रिसमस की पुरवकार तकरीब हुई। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब उस्मान मौसम ने क्रिसमस का केक काटा और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। क्रिसमस की मुनासबत से सजाई गई तकरीब में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब उस्मान मौसम, ज्वाइंट रजिस्ट्रार हाउसिंग पंजाब बारिकुल्लाह खान, डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल असद भट्टी, सर्कल रजिस्ट्रार हाउसिंग जलील अहमद कुरैशी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जुडिशल जावेद इकबाल हंजरा और लॉ ऑफिसर मोहम्मद शाहिद बट के अलावा दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। पेप्सी को अमल यूथ प्रोग्राम के जरिए 1600 फारिगुल तहसील तुलबा के लिए पेप्सी को पाकिस्तान की जानिब से वर्चुअल ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया। पेप्सी को अमल यूथ प्रोग्राम के जरिए 1600 तुलबा फारिगुल तहसील तुलबा के लिए पेप्सी को पाकिस्तान की जानिब से वर्चुअल ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया। ग्रेजुएट होने वाले तुलबा में 40% खवातीन शामिल हैं। तकरीब में पाकिस्तान अफगानिस्तान के CEO फुरकान अहमद सैयद ने शिरकत की। अमल अकेडमी के शरीक बानी बेंचे विलियम्स, विफाकी वजीर फवाद चौधरी भी तकरीब में बतौर मुकर्रीन शरीक हुए। विफाकी वजारत इत्तलात और नशरियात का स्ट्रीट्स आर्ट मनसूबा डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक और DIG ऑपरेशन इशफाक अहमद ने पंजाब यूनिवर्सिटी में स्ट्रीट आर्ट्स मनसूबे का जायजा लिया और मनसूबे में शामिल तुलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। वफाकी वजारत इत्तलात और नशरियात का नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी पैगाम पाकिस्तान और डायमंड पेंट के इश्तराक से मुल्क भर में मनसूबा जारी है। मनसूबे के तहत तुलबा मुश्तरका तौर पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के महफूज मौज़ूआत पर स्ट्रीट आर्ट जारी रखे हुए हैं। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक और DIG ऑपरेशन इशफाक अहमद ने तुलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। दोनों शख्सियात का कहना था कि फन के जरिए माशरे में अमन और हम आहंगी कायम की जा सकती है। तुलबा का आर्ट वर्क बेहद सताइश के काबिल है। अमन के लिए किया है ताकि अमन का पैगाम जो है वो दुनिया तक पहुंच सके। पाकिस्तान ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं अमन को हासिल करने के लिए और अब हम अमन को कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। ये पैगाम पाकिस्तान की बात है, ये हमारे मुल्क की सालमियत की बात है, पीस की बात है। नौजवान फनकारों का कहना था कि हमें माशरे में तब्दीली लाने के लिए हिस्सा लेना चाहिए। अगरचे नौजवानों की तरफ से ये बहुत कम कोशिशें हैं, लेकिन इसका असर खास तौर पर नौजवानों में मुस्बत सोच और रवैया पैदा करने के लिए है। हमने एक मैसेज दिया है अपनी सोसाइटी को कि हम कैसे पीस, टॉलरेंस और रेजिलियंस के साथ पाकिस्तान को एज अ सोसाइटी एंड एज अ नेशन बिल्ड कर सकते हैं। कैलीग्राफी का शौक होने की वजह से मैंने कहा कि अपने इस शौक को ज़िंदा करने का एक मौका मिलेगा और इस तरीके से हम लोग इस पैगाम पाकिस्तान और अमन पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग हमने पेंटिंग्स बनाई है, जिसमें टॉपिक्स जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, इंटरफेथ हारमोनी के बारे में। पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवारों पर महफूज खैराती तरीकों, कोविड-19, अमन के फरोग में खानदान और खवातीन का किरदार समेत दीगर मौज़ूआत पर आर्ट वर्क किया गया। इस सरगर्मी का बुनियादी मकसद कलीदी पैगामात को उजागर करना, लोगों में मुख्तलिफ माशरती अमूर पर शऊर बेदार करना और स्ट्रीट आर्ट के जरिए कौमी बयानिया को फरोग देना था। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा इमरान यूनस, लाहौर। पेंटिंग और स्केचिंग इंसान की तख्लीक कारी के साथ ज़हनी आसूदगी का भी बायस होते हैं। ऐसे ही एक फनकार से मिलवा रही हैं सादिया खान। सैयद अब्बास हैदर शोबे के लिहाज से तो डॉक्टर हैं, लेकिन कुदरत ने इनको रंगों से खेलने का हुनर भी अता किया है। स्केचिंग, पेंटिंग्स और कैलीग्राफी इनको ज़हनी दबाव से निकालने में मदद देती है। शुरू से ही जो है बचपन से इंटरेस्ट है ड्राइंग और पेंटिंग करने का। इवन आप ऐसा अंदाज़ा लगा लें कि जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मेरे जितने दोस्त होते थे क्लास फेलोज, ड्राइंग की क्लास में मेरे से अपनी सारी ड्राइंग्स बनवा के जाते थे। तो ये बस गॉड गिफ्टेड है, शुरू से मुझे इस चीज़ का इंटरेस्ट था। कुदरती नज़ारे, मौसम, नदी नाले और पहाड़ अपनी खूबसूरती और जाज़िबत के बायस इनके आर्ट का खासा है। सैयद अब्बास हैदर ने यौम कायद पर कायद-ए-आज़म का पोर्ट्रेट बनाकर इनको खराज तहसीन भी पेश किया है। कुदरत के खूबसूरत रंगों को कैनवस पर उतार कर शाहकार बनाने वाला आर्टिस्ट अपने रब से मोहब्बत का इजहार करता है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। कुछ देर में सिटी हेडलाइन।